This one is the experimental proof of experimental evidence of chemical evolution. See here, a gas, methane, ammonium, water vapor, and hydrogen. What is the amount? It means 2:1:2. See this one. And water vapor is the temperature here 800 degrees Celsius. See, this one is the, and chemical analysis or chemical reaction will take place and form water containing organic matter which forms first life. It means sugar, amino acid, bases, fats and pigments. These form first life. Okay. So in chemical evolution, explain experimental evidences that are formation of first life. यानी पहली लाइफ के एविडेंस को इसने बताया. First non-cellular life forms originated 3 billion years ago in the form of giant molecule like RNA, protein and polysaccharides inside the self-replicating metabolic capsule. फर्स्ट सेलुलर फॉर्म जो आया, पहला नॉन सेलुलर फॉर्म आया था 3 billion years ago. After that, first cellular forms comes 2000 billion years. You see this one. 2000 million years ago. Single cell might be originated in water. ये पानी में लाइफ आई. अब ये लाइफ आई है, उसके एविडेंसेस क्या है? फॉर दिस सिंगल सेल इवॉल्व, इट टेक्स टू मच टाइम टू इवॉल्व. अब एक सिंगल सेल से जस्ट लाइक अस, हम लोगों की तरह ऑर्गेनिज्म बनना है, इसको बहुत चेंजेस की ज़रूरत पड़ी ना, बहुत सारे ग्रेजुअल चेंजेस आए. दैट्स वाई इट टेक्स टू लॉन्ग टाइम. तो दिस सिंगल सेल इवॉल्व, इट टेक्स टू मच टाइम टू इवॉल्व. सो सम एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन आर देयर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. कुछ एविडेंसेस आए. फर्स्ट वन, सी हियर, दीज आर द एविडेंसेस. फर्स्ट वन इज द paleontological evidence. Paleontological evidence, it means in the study of fossils and different sedimentary layer. अगर खुदाई करेंगे तो कोई हर लेयर पे जो भी ऑर्गेनिज्म मिलेगा, जो सबसे नीचे वाली लेयर पे मिलेगा, वो सबसे पुराना होगा. तो paleontological evidences में it means study of fossils and different sedimentary layers indicating the geographical period. Example is there Archaeopteryx. Archaeopteryx is the link between the reptiles and birds. Second one is the comparative anatomy and morphology. In this, there are two types of organism, homologous and analogous organ. What is homologous and analogous? Homo it means same, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एंसेस्टर सेम हो. एंसेस्टर सेम होंगे, इट मीन्स एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट ऑल्सो सेम एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो सेम, बट फंक्शन डिफरेंट. ओके, कॉमन एंसेस्टर, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एंड बेसिक स्ट्रक्चर सेम, but function different is homologous organ, and it shows divergent evolution. HD में TV आपका आता है तो याद रखना, H for homologous organ show divergent evolution. And such as four limbs of animals के four limbs जो इसमें क्या होगा, ह्यूमरस, रेडियल ना, ये सब होंगे. लेकिन जैसे हैंड आगे वाले फोर लिम्स को देख लेते हैं तो उसमें ह्यूमरस और रेडियल ना और सब एक से होंगे, लेकिन फंक्शन अलग अलग होंगे. किसी में हम लोगों की में हाथ की तरह काम कर रहा है और घोड़े में जैसे हॉर्स में ये दौड़ने का काम कर रहा है. एनालॉगस इसके जस्ट ऑपोजिट होगा. नेक्स्ट वन इज़ द बायोकेमिकल एविडेंस. सी, बायोकेमिकल एविडेंस, दिस वन. This one is the biochemical evidence. See here. What is biochemical evidence? It means it suggests that the species restricted to a region develop unique features. एक एरिया में ही रहती है और वहाँ पर रहने की वजह से वो अपने पे एकदम स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स डेवलप कर लेती है. ऑल्सो स्पीशीज प्रेजेंट इन वाइडली सेपरेटेड रीजन शो सिमिलैरिटी ऑफ एंसेस्टर्स. और इसी तरीके से एग्जाम्पल है adaptive radiation. See, adaptive radiation is the example. Industrial melanism is also the example. Marsupials, pouched marsupials also the example. So some examples are there for adaptive radiation. Darwin finches. See, these are the Darwin finches. इसमें beaks में changes आ गए. इनके एक ही अलग अलग जगह पर जाकर ये डार्विन फिंचेस एक ही जगह से उड़ के अलग अलग जगह पर गई.
और वहाँ के फूड हैबिट के अकॉर्डिंग उनकी मोस्टली बीक्स में ज़्यादा चेंजेस आ गए थे. येस, अनदर एग्जाम्पल इज मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स मतलब होता है पाउच्ड एनिमल्स. व्हाट डू यू मीन बाय मार्सुपियल्स? पाउच्ड एनिमल्स. तो दीज आर द एविडेंसेस. After that, theory of evolution. What are the theories? See, this one is the biogeographical evidence. These adaptive radiation is also known as the biogeographical evidence. After that, theories of evolution. थ्योरी क्या थी? थ्योरी अब एविडेंस के लिए क्या क्या थ्योरी दी गई? थ्योरीज दी गई थी. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में फर्स्ट वन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क ने दी थी. लेमार्क ने दी थ्योरी एक्वायर्ड कैरेक्टर की. इसमें क्या बताया कि उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वो अपने आप ही बनते चले जाते हैं. उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि उसमें जीनिक यानी हेरिडिटी का कोई नेचर कोई भी रोल उसमें नहीं होता है. सेकेंड वन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी. इसके बाद इन्होंने ये इन्होंने बताया कि फिट सर्वाइव करता है, लेकिन फिट आया कहाँ से ये नहीं बताता है. नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डार्विन ने वो एक रिजल्ट दिया. और इंडस्ट्रियल मेलानिज़म का एग्जांपल दिया इन्होंने. इसमें बताया कि इन्होंने देयर आर सम वास्प थे वाइट और ब्लैक कलर के यानी डार्क कलर के वास्प थे. डार्क विंग्ड और मेलानिक, जिसको डार्क विंग्ड या मेलानिक फॉर्म बोलेंगे, और दूसरा था वाइट विंग्ड मॉथ. ये इसमें क्या होगा? इन्होंने एग्जाम्पल्स किया. ये नेचुरल सिलेक्शन का एक एग्जाम्पल किया जो कि थ्योरी थी इनकी. इन इंग्लैंड 1850s बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देयर वर मोर वाइट विंग्ड मॉथ. इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वाइट विंग्ड मॉथ ज़्यादा थे जबकि डार्क विंग्ड मॉथ कम थे. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बट बिकॉज लाइकेन प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ प्लांट, दैट्स वाई white moth more. But after industrialization in 1920 dark winged moth become more. 1920 में 1850s में तो white winged moth थे, लेकिन in 1920 में क्या हो गया? dark winged moth आ गए. रीज़न क्या हो गया? आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन. सी what is industry creates pollution और लाइकेन इज पॉल्यूशन इंडिकेटर. जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन नहीं होगा. अब तो वाइट सरफेस में वाइट मॉथ छुप जा रहा था. वाइट लाइकेन में वाइट मॉथ छिप जा रहा था और उसको प्रेडेटर नहीं देख पा रहा था. दिस इज़ बिकॉज ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन द ट्री ट्रंक्स कवर्ड बाय वाइट लाइकेन बिकम डार्क ड्यू टू एयर पॉल्यूशन, dust or shoot particles. Due to this, white winged moth could be easily seen and eaten by the predators as they failed in camouflage. Camouflage का मतलब होता है hide और disguise the presence of person. मतलब उसमें दिखे ना, डिसगाइज करते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एनिमल हो, वो डिसगाइज करते हैं. दिस शोज दैट इन अ मिक्स पॉपुलेशन दोज दैट कैन बेटर एडेप्टेड सर्वाइव एंड इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज. तो यानी जो बेटर था वो सर्वाइव कर पाया. इसी से सम अनदर एग्जांपल इज केमिकल रेजिस्टेंस. इसमें क्या करा गया? द excess use of herbicide and pesticide leads to selection of resistant variety of microbes in less time. After that, mechanism of evolution.